Hello, good morning, children. This is your Shweta ma'am, and after your summer holiday, today we are going to start our chapter number 6 in mathematics. And from chapter number 6, we are going to start our geometry also. Okay, so chapter number 6 is line and angles. So, children, from your initial classes, you have learning about the lines, angle, point, some geometrical figure. So what is the geometry? In mathematics, what is the geometry? In mathematics, geometry is the specific branch of mathematics in which we learn about the geometrical figures, different geometrical figures, lines, triangle, angles. What are these? Quadrilateral. In your further chapters you will learn about some advanced like parallelogram, quadrilateral, advanced geometrical figure. So your basic is going to start from chapter 6, that is line and angle. So there are before starting the chapters or exercise, as we already do, we'll start with the introduction part. And what is in the introduction, there are some basic definitions which you are learning from your 6 standards. Okay, so but today we are taking our revision, you can say it is a revision class also, and it is important for your exercise and to solve the problems. Okay, so children, in the line and angle chapter, first we learn about line. What is the line? You know what is the line? Line is a, when we join two point, suppose one point it is and one point it is. Okay, when we join one point to the another point, the geometrical figure we get, it is a line. Okay, but what is the specific thing in line? It's both and there is arrow. We put there is arrow. That means line, we can produce the line from its both end and it has a indefinite length. आप इसको, हम इसको कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये जो एरो पुट करने का मतलब होता है, it has infinite length and we can produce it infinitely from the both end. Okay, इसको L A B, ये जो पॉइंट है कि लाइन, जो लाइन है, लाइन की तो आपकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन क्या उस कर सकते हैं हम, इसके कोई भी 2 पॉइंट, लाइन पे कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, उनको हम ए और बी के नेम से उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो लाइन की छोटी सी डेफिनेशन हो गई आपकी, लाइन नो एंड हैव द इनफाइनाइट लेंथ. ए बी लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, और उसके ऊपर एरो एट द बोथ हैंड. ओके, then a line segment means a part of a line, segment means क्या होता है, वैसे भी part होता है. So suppose we have a line, okay, and we are taking a part of it, A B. So this is our line segment and we represent in that way. Line segment A B means it has 2 end point and it has a finite length, fixed length. Okay, so this is our line segment. A part of a line has definite length and 2 end points. इस तरीके से. तो ये बच्चे आपके नोट्स हैं, इनकी इमेजेस मैं आपको भेजूंगी, तो आप इसको क्या क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट करेंगे और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. रे हैविंग वन एंड पॉइंट एंड कैन बी प्रोड्यूस ऑन अनदर पॉइंट. रे मीन्स होता है आपका इस तरीके से, रे इज इन दैट वे, हाउ काइंड ऑफ, इसको हम वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, ए एंड बी. ओके, a ray has a one end point and we can produce it at the another point. मीन्स एक पॉइंट पे इसकी फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक पॉइंट पे एरो प्लेस होता है कि हम इसको दूसरे पॉइंट से इन्फिनाइट हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, हैविंग एन एंड पॉइंट एंड कैन बी प्रोड्यूस ऑन अनदर पॉइंट, अनदर एंड से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट्स. क्या है? कोलिनियर पॉइंट. If three or more points lies on a same line called collinear point, otherwise they are non-collinear points.
ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं आपकी और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सो ही विल से लाइक ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ करके खुद से डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं। ठीक है, सो कोलिनियर पॉइंट ए बी सी डी, सिंपल। कोलिनियर, लीनियर मीन्स कोलिनियर, एक ही लाइन पे। इफ some points are lying on a same line or line segment, so they are collinear points. Means suppose a line, we have a line AB, okay, and some point P Q R S. When more than 3 point lies on a same line segment, इट इज़ कोलिनियर पॉइंट। अब आपने डेफिनेशन में एक चीज़ देखी है, उसने बोला है मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 2 पॉइंट्स, देन वी विल कॉल देम कोलिनियर पॉइंट। अब ठीक है बच्चे, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एक लाइन लेती हूँ और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, और एक ले लिया बी, तो ये ए और बी हमेशा कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, अगर आप उन्हें ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट एक लाइन हमारी फॉर्म होती है। कोलिनियर कब होंगे वो, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाइज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर के लिए कैसे डिफाइन कर लेंगे आप, 1 2 एंड 3, दीज आर नॉन कोलिनियर बिकॉज दे ऑल आर नॉट लाइंग ऑन अ सेम लाइन, ए पी क्यू एंड आर, सो दीज आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्योंकि इसमें क्या है, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चे, क्योंकि इसमें जैसे आपके पास फिलअप्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, तो उनके लिए ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से आ जाएगा एग्जाम में, सपोज कि 3 और मोर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड डैश, इस तरीके से, तो आप उसमें डैश में फिल कर देंगे कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड डैश पॉइंट्स, अदरवाइज इफ दे आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन सेगमेंट दे आर कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के वी आर एक्सप्लेनिंग विद दी 1 डायग्राम।